ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের ভোট কুশলীর আবহে একাধিক বঙ্গে বিজেপি নেতার কিন্তু আগমন। ক্রমেই বাড়ছে জল্পনা। পরিবর্তন কি সত্যিই হবে, সেটা জবাব দেবে সাধারণ মানুষ। কিন্তু ইতিমধ্যেই রাজনীতির সমীকরণ যে কথা বলছে, শাসক শিবির যেভাবে তাদের নিজেদের ঘুঁটি সাজিয়ে রেখেছেন ছাব্বিশের বিধানসভা কেন্দ্রীকরণ করে, একেবারে সেই পুনরাবৃত্তির পাল্টা ছবি। বিরোধী শিবির কিন্তু কোনো অংশে শাসককে পরাস্ত করতে পিছুপা হচ্ছেন না। যেভাবে রাজ্যের শীর্ষ বঙ্গ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বরা ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে পরিবর্তনের ডাক দিচ্ছেন একই রকম পর্যায়ক্রমিক কেন্দ্রীকরণ করে, সেইভাবেই একেবারে কিন্তু কেন্দ্রের যারা একাধিক শীর্ষ নেতৃত্বরা তারাও কিন্তু সেই ডাকেই একেবারে সুর মেলাচ্ছেন। একেবারে দেখার যেটা লক্ষ্য করার বিষয়, কালীঘাটে কিন্তু একের পর এক বঙ্গ বিজেপির বলা যেতে পারে কেন্দ্রীয় যারা নেতৃত্বরা তারা এসে ক্রমাগত পৌঁছচ্ছেন, এবং শুধু পৌঁছচ্ছেন না, কালীঘাটের মন্দিরের মায়ের কাছে তারা পুজো দিচ্ছেন। এবং তারপর তারা ছাব্বিশের বিধানসভার মসনদে কিভাবে তারা লড়বেন, কিভাবে বিজেপিকে পরাস্ত করবেন, সেইটার দিকে তারা কিন্তু আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছেন। আমরা যেমন এখনই একটু বাদে দেখতে পাবো যে ছবি, একেবারে উত্তরপ্রদেশের যিনি ডেপুটি চিফ মিনিস্টার রয়েছেন সেই ব্রজেশ পাঠক, তিনি কিন্তু এই মুহূর্তে কালীঘাটের মন্দিরে কিছুক্ষণ পরে তিনি পুজো দেবেন। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আবারও আজকে রাজ্যে দেখা গেল জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের টিম তারা উপস্থিত রয়েছেন, গণেশ কুমার সহ একাধিক আধিকারিকেরা। এবং সে অন্যদিকে দাঁড়িয়ে কিছুদিন আগে কিন্তু দিল্লির যিনি মুখ্যমন্ত্রী সেই রেখা গুপ্তা, তিনিও কিন্তু একেবারে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। এবং এর আগেও একাধিক, কখনো গিরিরাজ সিং থেকে শুরু করে আরো বিভিন্ন কেন্দ্রীয় বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বরা তারা ক্রমেই আসছেন কিন্তু রাজ্যে। মূলত পরিবর্তনের ডাকের একেবারে বাতাবরণ যে রাজ্যের একটা আভাসই পাওয়া যাচ্ছে, সেই আভাসের দিকেই কি আস্তে আস্তে পূরণ করে এগিয়ে যেতে পারবে বঙ্গ বিজেপি? এই প্রশ্নটাই কিন্তু এখন ক্রমাগত পর্যায়ে উঠছে জনতার চোখে মুখে। পরবর্তী পরিস্থিতির চিত্র কোন দিকে যায় সেদিকে থাকবে নজর। নজর রাখুন দেশবাট 24 বাংলা ডিজিটালের পর্দায়। सर, कलकत्ता में आए, काली माँ का दर्शन हुआ, क्या बोलेंगे बंगाल के बारे में? कोलकाता में काली माई के दर्शन के उपरांत मैं ये कह सकता हूँ कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की बयार बह रही है। पूरी तरह से जनता का मन जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कमल के साथ है। पश्चिम बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है, कानून व्यवस्था मजबूत चाहती है और पूरे देश के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहती है। मैं पश्चिम बंगाल की जनता का आह्वान करता हूं, परिवर्तन की इस लहर में, परिवर्तन की इस बयार में भारतीय जनता पार्टी के साथ, कमल चुनाव के साथ खड़े हों और बिहार की तरह, उत्तर प्रदेश की तरह, दिल्ली की तरह पश्चिम बंगाल को भी तेजी के साथ आगे बढ़ने वाला राज्य बनाने का काम। सर, सुबह में गणेश कुमार जी आए थे तो उनको ब्लैक फ्लैग दिखाया गया, वो बैक स्लोगन भी दिया था यहाँ से। आज सुबह में देखिए, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शुचिता पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष चुनाव की हमेशा पक्षधर रही है और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका सबको सम्मान करना चाहिए। हम सब कार्यकर्ता शुचिता पारदर्शिता के साथ भारतीय जनता पार्टी की रीतियों नीतियों को लेकर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर पश्चिम बंगाल की जनता के बीच में है। कल दिन पहले राष्ट्रपति जी आई थी बंगाल में। देखिए, आप सब मैंने आपको पूर्व में दोहराया, जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो हमारे राष्ट्र के गौरव हैं, उन पदों को हमेशा सम्मान मिला है और हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम अवश्य जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया का सम्मान है उसे हम सब बरकरार रखें, उसे आगे बढ़ें। आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं, बंगाल के साथ साथ और भी दूसरे राज्यों में हूँ, पर जिस प्रकार से यहाँ देखिए, आप जानते हैं SIR कोई पहली बार नहीं हो रहा। SIR आज़ादी के बाद जब से देश गणतंत्र बना कई बार हुआ है और कभी ऐसा होला नहीं बना। ये परिवर्तन की बयार में, परिवर्तन की लहर में फेस सेविंग के लिए जो राजनीतिक दल हैं अपनी संभावित हार को देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में आ रही है,
अपनी फेस सेविंग के लिए इस प्रकार का बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन चुनाव तो सामने आ रहा है और एसआईआर में करीब 60 से 63 लाख जो वोटर है देखिए, उनका जो actual भी fiction जो है। भी मतदाता है उसका मतदाता सूची में नाम हो, इसको सुनिश्चित करने का काम भारत निर्वाचन आयोग का है और हम सब कार्यकर्ता भारत निर्वाचन आयोग की मदद में और लगे। आप परिवर्तन का बात कर रहे हैं, कल ही इंटरनेशनल वुमेन्स डे गया, क्या लग रहा है बंगाल में या फिर कलकत्ता में लड़की लोगों देखिए, का आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी बेटियों को हर मोर्चे पर आगे बढ़ाने का काम किया है और देश में आज़ादी के बाद पहले कभी भी महिला आरक्षण के बारे में संसद में किसी ने नहीं सोचा। आज हमारी बेटियां तेजी के साथ हर सेक्टर में आगे बढ़ी हैं और पार्लियामेंट में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित होने जा रही है। ममता दीदी तो यहाँ पे धरना में बैठे हुए धरने में हैं। बैठे हैं। इसमें लगभग 2 करोड़ सबसे वोट लगे हैं, तो क्या बोलेंगे? देखिए, अभी फाइनल मतदाता सूची आ गया है क्या? अभी तो ड्राफ्ट मतदाता सूची है और ये लगातार काम चलेगा। हम सब शुचिता पारदर्शिता के साथ मतदाता सूची बनाए जाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की मदद कर रहे हैं। सर, यहाँ पे ममता दीदी धरना में बैठी धरने हुई में बैठे है। हुई है धर्मतला में। आप सब जानते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है, परिवर्तन की लहर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। ममता दीदी के बारे में क्या ममता दीदी के कहना है बारे में आपका? क्या धरना बोलना में बैठी चाहते हुई हैं? है। देखिए, ये सब पॉलिटिकल बातें और कुछ नहीं।